What was your mindset when you started this preparation? You wanted to be a bureaucrat or you decided to be on the way? So it was 10 months down the preparation journey where for the first time I realized or I got to know what exactly does a bureaucrat does. उससे पहले तो उसे पता ही नहीं था कि करता क्या है. Why most of the engineers enter this sales? So for me, I think it was different because I was already doing a startup. Mental health को कैसे focus किया जाए, right? 3-4 years of preparation is not easy. There was a point where I felt very exhausted and Correct. ऐसा लग रहा था कि जैसे I have reached my limit. इसके बाद मैं और नहीं पढ़ सकता. That mental exertion was there. I was not able to process anything. And it happened within 10-12 months into the preparation. Welcome all to this podcast. I'm Ashutosh Pandey and I've been teaching public administration for the last 12 years. And today with me is Saurav Budwar, who's got rank 41 in the reserve list UPSC 2023 with public administration as optional. This podcast will mostly focus on a lot of things inter alia, along with his personal inputs into how to prepare for UPSC and what an average aspirant who aspires to clear this exam in 2027 should do, and in fact should not do, both of them. I would start with a quote by Franz Kafka where he says, "All language is but a poor translation." You cannot express emotions directly in words, and we are so happy he has been one of our students. Plus, I have seen personally his struggle, a lot of effort, in spite of being an IITian, right? A lot of effort he has put to be there where he is, and many of you might aspire to be tomorrow. So let's start the podcast. Welcome, Saurav. Thank you very much, sir. Thank you for having me here. This podcast will be very light. Don't worry. This is not a UPSC interview, right? We both have given the interviews, right? And as you can make out, that majority of the students today are they are quite ambitious about getting into civil services. So first, very beginning question, there's you can say it is more of a wish list, not a question, that does it actually matter to be in civil services? Yes. There are a lot of views coming that there are so many options. Why civil services? So I think yes, it does matter. To be in civil services is one of the noblest profession you can be in. Why not doctor? Well, sir, they say that public administration is the conduit of justice. So justice flows through administration. Right. So, well, a doctor can give a life to a particular person, but then it is the administration which has to sustain it. Quality of life is important. Yes, sir. But so that is your personal experience, fine? That is your personal experience that yes, civil services is a career, an aspiration that we can actually cherish and work hard for. Yes, sir. Fine. Now, this is the beginning note, right? So we'll start with his journey, a lot of other views. A lot of you are concerned about the academic inputs required for UPSC. Fine. So one of the first, let's start with a very basic segment, right? What is the difference between the Saurav, the IIT engineer, and Saurav, the IAS or the IRTS officer? How do you distinguish between these two? What change? What has happened? How do you view this change? So, sir, there is a philosophy in Jainism, Anekantavad. So, before coming into the preparation of IIT, I could not understand it properly. So, there is one given reality and you can see it from different perspectives. Right. This is what UPSC taught me. Before coming to this preparation, so my vocabulary would be very technical. I would not value emotion as much as I would value the logic. And formula based study, huh? Yes, sir. And that's where I feel that I had that longing for a very long time that I want to understand what poverty is, what it means, how to solve it. Because we can say for the last 75 years, we see these 35-year questions, question bank. Right. So one thing that I observed was that questions have not changed. We say that 50% of the paper repeats. Right. So
I saw a question 30 years back. The question was, how do we solve the problem of unemployment in India? Mhm. Then again in 2017, there is a question, how are we going to solve unemployment in India? Right. So the question remains the same perpetually. And that is where I think it is so much more important. You see the basic structure adopted. Yes, sir. It's oft repeated in your GS, Yes, sir. right? Or the question on values and virtues of civil services. In some form or the other, it comes in administration, accountability, and control. Fine, or ethics in governance, or for that matter, your digital era governance. So, yes, you can say the themes are recurrent. But so the final conclusion is that as a UPSC aspirant and as a topper, right? The transformation that you've gone through is the value orientation, You're right, sir. right? You believe that now you can look at the world with a more normative lens, right? Yes, sir. पॉवर्टी को आप एम्पथाइज कर सकते हो. पहले आप सिर्फ एक नंबर की तरह पढ़ते थे, Right, sir. फाइन, लेकिन आप उस पॉवर्टी को यू कैन कल्चरली ऑल्सो एम्पथाइज, राइट? You need not be poor for that, Right. right? But definitely you can be in the mindset of the poor. So definitely this is a big transformation, and I think this is one of the most fundamental changes a bureaucrat has to go through, apart from learning the ropes of corruption, right? So एक ये बहुत बड़ा transformation है, उसको जाना पड़ता है, बाकी तो वो सीख ही जाता है ना. बिल्कुल सर. Right. So okay. So let's say this is a very good idea you have given कि एक इंजीनियर टू एक ब्यूरोक्रेट, राइट? एक एडमिनिस्ट्रेटर, ये कितना बड़ा चेंज है, राइट? लोग बोलते हैं कि स्पेशलिस्ट चाहिए. सो डू यू एग्री कि स्पेशलिस्ट ही चाहिए या एक जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट का एक मिक्स चाहिए? Well, sir, so there is this position classification and rank classification. So Right. generally we relate rank classification with the journalism, and then the position classification with the specialists. So, sir, as many bureaucracies have transformed across the world towards a functional kind of bureaucracy, Right. which is a midpoint between both. So initially, for example, in UK, they would recruit generalists, and then they would give functional specializations with time. So we see that in Indian bureaucracy also, and I feel that that is a fine balance that we can have. Okay, so like Singapore or many Nordic countries have contractual bureaucracies, right? Yes, sir. You agree with this idea? No, sir. I think contractual bureaucracy. So, sir, when we are entrusted with the responsibility to run a country, we also need to have some ownership about it. Contract might not give us that opportunity to relate. Okay, that takes away the permanent sense of accountability. Yes, sir. Yes, right. If somebody wants to live their life through their country, so it's a very good thing that we have this permanent. You said the spirit of Yes, sir. being a civil servant, right? Spirit, Not yes, just, sir. yeah. And sir, I can appreciate this especially after being into the service. So when I interact with my batchmates, so there is that that fraternity, the feeling of fraternity, the They believe in what they are going to do. yes, sir. But okay, let's cut down to more easy things first for the students, right? Most of the students are quite, they're in a dilemma when they start the preparation. Even me, when we started off, even I'm an engineer, you know that, right? And then I did law. So that was little change for me, like you said. When I studied law, I realized कि okay, yes, things are not numbers. There are people behind those numbers, right? So वो एक बहुत बड़ा change है, no doubt. But many of the students today, I'm coming to the idea, they don't understand the process, the rigorous process through which, an aspiring person enters into the, what we say, the steel frame. So using that word, right, in a reel or a motivational, video, it seems easy. But actually becoming one of the pillars of the steel frame, right? How tough is that? What was your mindset when you started this preparation? You wanted to be a bureaucrat, or you decided to be on the way to be a bureaucrat? So first, the process is very brutal. So I remember that when I started preparation, one thing was clear in my mind, that whatever may happen, I'll give 6 attempts. I'll exhaust all my attempts, and whatever the result may come, but I will exhaust all my attempts. Secondly, sir, about why did I even start into this preparation, and when did I became that that bureaucrat?
So it was 10 months down the preparation journey where for the first time I realized or I got to know what exactly does a bureaucrat does. उससे पहले तो उसे पता ही नहीं था कि करता क्या है. It was just mad rush of कि चलो everybody is doing, so I can also have this as a worthy option. Adrenaline, huh? It was more of hormonal rush to be something, no? Why most of the engineers enter the civil service? So for me, I think it was different because I was already doing a startup. So I had a startup company, and I left that startup company to start with the preparation of the Okay. UPSC. So while doing that startup, it was related to infrastructure. While doing that startup company, I realized that difference क्या आता है एक person who is average and the person who is excellent. And the difference is information, it's knowledge. The information asymmetry that we talk about कि अगर let's say today Kumar Mangalam Birla, he loses everything today. So is he in a position to regain all of it again in his lifetime? And agar if a person is self-made, if a person knows how to traverse the ropes, so they certainly can. तो सर ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि अगर मैं अच्छी स्टार्टअप कंपनी बना पाऊंगा, दैट वुड बी only because of what I know. And for that I was reading 5 hours a day already. So सर ये जो बहुत सारी feasibility analysis reports रहती हैं ports से related, या फिर जो हम हाईवे की इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं नेशनल हाईवेज के, उनकी environment impact assessment reports, उनकी economic feasibility reports. And so sir, I had this thing in mind that how would I be a good businessman if I do not understand the geography of India? If I don't understand the political structure of India? Right. And with that motivation, I was already studying 5 hours a day. Right. And that gave me a smooth transition into studying and preparing for this journey. Correct. It was COVID times, and because of which we were not getting much traction into the company, and I had to pivot. But like this was the motivation, and To change. it took 10 months to actually understand what Change you're going to? Yes, sir, what bureaucracy does. Okay. So there is one corresponding question, right? Again, this will be the question of most of our listeners. You had backup. Most of them don't have. Right? A normal student coming from humanities background, a history honors student or a pol science, or in general any humanities or BSc or BA, right? How would he take this giant leap of faith as you did? You already had a job, you already had a formidable degree, right? You are related to a big institution of this country. So you had that confidence. What about this average aspirant, right? Who feels that 6 years means almost, 6 attempts means almost 9 years, right? That is almost, he had nothing left, right, after this. So either he goes into PCS exam or he tries some other exams, or somewhere he feels that whatever comes now is, destiny, that is what I had to do. So even the UPSC has taken initiatives, right, like Pratibha Setu and all that. But in spite of that, see, most of the students look for plan B or C. Fine. Though I personally feel that first work on plan A, then think, right, keep the plan, but don't work on that. Most of the students start working for plan B from the beginning without working on plan A. So what is your view? How can an average student think of this exam? Sir, first of all, that India being a developing country, so there are a lot of opportunities where a person can work, and especially once we are prepared for civil services. So my own horizon had broadened very much. So I thought that like doing startup was one thing, but then starting a civil society organization was something that that is a huge thing, but I could not think of before preparation. Right. You did not know the scope. I didn't know the scope of it. Maybe working with World Bank, and I mean, these are possibilities that a person can explore. And sir, sir, people look at the shine that I have, but not the place where I come from. Yeah, the grind behind the shine. Sir, till 9 years of age, I was staying in a village. Okay. And like 25 crore people who urbanized in that 20 years of duration from 1990s to 2010s. I'm one of that urbanized person. Okay. Sir, एक गांव के स्कूल से निकल के then coming to a first generation urban. And then sir,
that cultural shock that is there. Then going to a school where English was a norm, so which I could not really catch up to initially. Mm-hmm. Then going to IIT itself was a very huge cultural shock for me. So sir, at every point I had made it a point that I'll work very, very hard. I'll be brutal with myself and whatever is needed, I'll do that. तो एक एवरेज स्टूडेंट को कैसे करना चाहिए, जो आप मतलब हमारा जो फोकस है यही है कि प्लान बी या सी, उसको क्या what hopes he should have, right? What strategies he should have even before he starts for UPSC. What do you suggest? Let's say 2-3 lines. You want to suggest something. So before I'll complete the previous previous one. So Dr. APJ Abdul Kalam has inspired me a lot. Right. So some of his quotes, which have always been with me, that when you wish upon a star, makes no difference who you are. Everything that you wish will come to you. Right. So this quote, I first came through it when I was in class 9th. And so nobody in my class qualified for IIT. So in fact, ये भी होता है ना सर कि law of averages में if everybody else is average, you will also remain average. बिल्कुल. तो sir, transcending that Gaussian where everybody is average and then going to a new average and then uplifting yourself every single time. So that's also a journey. Yes. Self-discovery. That's self-discovery. Yes, sir. And so the second quote of again Dr. APJ Abdul Kalam that inspired me was that small aim is crime. Correct. Low aim is crime. So, sir, nobody in my family had ever thought of starting a company. So it was again one of its kind of decisions. So you are saying that people should take that step. Yes, sir. That leap of faith, sir, it is actually necessary to take that leap of faith to transcend where you are to where you reach. You will be or you desire to be. Yes, sir. तो एक जो phase of silence है, where you are isolated from everything, because this preparation, as you said, requires a lot of effort, right? And consistent effort. तो उसके लिए isolation होता है, एक island हो जाता है आपकी जो पूरी जो आपकी process है. तो वहाँ पे कितना important है आपके old friends, school friends, या people who are preparing with you, fine, your mentors, teachers, और भी दोस्त आजकल तो बहुत digital friends भी हैं, है ना? तो ये कितने important होते हैं, right? How important they are? Because I believe that without them, it is impossible to cross over this bridge. Sir, there are very few number of people who are actually important. So they could be your parents, could be one or two very good friends who actually would want to see you grow. Not everybody wants that. Right. So sir, when I started preparation, yes, we definitely need few. So sir, when I started preparation, so sir, first thing was that I turned off my WhatsApp. Okay. I kept my phone aside. And so for 4 months, for 4 months, I was just करते थे, तुम्हारा लगता नहीं था. ठीक है. So sir, initial 4 months of my preparation, I was just flipping through books and books, and nothing was repeating. So that is how vast the UPSC syllabus is. Correct. तो 4 महीने तक मैं पढ़ते जा रहा हूँ, nothing is repeating. But sir, the second side is also that 10 महीने बाद there was nothing new. बिल्कुल. I mean, nothing as I mean from 90% everything is new to 90% everything is being repeated. Yes. So I think sir, in that phase, that particular phase, when you have to do some deep work, when you have to actually understand a concept, you need very long hours of continuous focus. I would even study for days in that phase. But friends are mandatory. Yes, sir. One or two friends, even there. And sir, those friends were available when you need them. Yes. Sometimes I would feel guilty that my phone is off. I'll turn the phone on and call a friend. And then switch off the phone. And then switch it off again because it's just one way pathway. So they cannot call me back. चलो self-centered भी जरूरी है होना इसमें, है ना? Means sir, अब थोड़ा सा तो ठीक है. You are right कि भाई you have friend would understand that you have to keep yourself, no doubt. Yes, sir. As one of the primary beneficiaries. Yes, sir. The important. बिल्कुल है. क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम मदद कर रहे हैं, हम एथिकल हैं तो हम बन जाएंगे. नहीं, हम एथिकल हैं तो बन नहीं जाएंगे. बनने के बाद एथिकल हो तो ज़्यादा अच्छा है. Yes, sir. ये कोई एथिकल नहीं है कि आप अपने टाइम वेस्ट करके और भी काम करने जा रहे हो. फाइन, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है. इफ़ देयर इज एन इमरजेंसी यू शुड रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, नो डाउट.
बट देन लाइक वी सेड कि जनरली क्या होता है कि जब हम प्रिपेयर करते हैं और शुरू में वी आर मोर ओवरवेल्म्ड, राइट? So we find lot of people, right? We find most of them being good. They may be good or not. That's a different idea. But initially हमें लगता है कि सब ठीक ही है. Yes. यार ये भी हेल्प ही कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी. So वो जो एक कॉलेज टाइप जो प्रोसेस है वो शायद यहाँ काम नहीं करता है. So it didn't work for me. हाँ, I know. It can be individual also, right? Could be individual, but sir वो जो phase है ना जिसमें they have done the deep work of understanding, going to the depths of कि But one thing, our concepts interlinked Correct. and related to each other, without having that deeper level of correct. consciousness, you can Yes. reach to that depth which the UPSC would require. Because exactly this is what I felt when I was preparing. I had to be alone. Yes, sir. When I'm going out, I need to take a walk. I need to discuss something. Obviously, I'll meet my friends, but I cannot sit collectively and study. That Right. never worked for me also. Yes, sir. Fine. Yes. So that is what is my experience as well. कि वो जो एक meditative state में जाने के लिए तो अकेले बैठना पड़ेगा. And sir, even when we have to discuss with friends, so that's again वो जो selfish वाली चीज है कि you have to tell what you know. हाँ, मत बोलिए, but And this सामने वाला person should keep quiet and just absorb whatever is coming, what you are saying. rather than saying कि अच्छा हाँ I also think this. So जैसे ही वो as soon as they start to validate, your own flow of thoughts gets तो एक agony aunt चाहिए सबको, है ना? जो so सुने. sir, for me, Problem. for Mother, me, कोई भी हो it was सकता my है. You're mother. right. हाँ. It can be anyone, right? So she would listen to me for like an hour continuously, and then So we come to very important aspect. Like you said, मैं phone switch off करता हूँ या WhatsApp बंद कर दिया. तो अभी हम लोग बहुत सारा इशू है मेंटल हेल्थ का. right. Fine, mental health in competitive exams. Plus what we say the kind of nomophobia, right? Nomophobia, I think you might know, is the recurrent habit of looking at phone. नींद में भी उठ के पहले आदमी ढूंढता है कि फोन कहाँ है, राइट? पहले लोग ढूंढते थे माँ बाप कहाँ है, कैसा है, अभी फोन ढूंढते ही है कि नहीं, चलो माँ बाप तो मिल ही जाएंगे, है ना? तो ये क्या मतलब, ये जो है क्या इसका मेंटल हेल्थ पे टोल है with online education expansion and all that, right? Because this lot of platforms are like we provide a lot of interaction for the students कि भाई उनकी community interaction हो, right? Doubt solving हो, सिर्फ academic नहीं, right? Mental भी, या interaction हो, थोड़ा humor हो, preparation सिर्फ एक monotonous boring process ना हो. तो do you agree कि भाई different modes हैं, right? Technology हो सकता है, physical हो सकता है, बहुत सारे modes हैं. तो लेकिन mental health को कैसे फोकस किया जाए, राइट? 3-4 years of preparation is not easy. Right. It's like preparing for an Olympic race. Almost, right? 4 साल आप करते हो, फिर जाके आप देखते हो कि हाँ यार एक क्वेश्चन 0.25 से मेरा CSAT में हुआ, राइट? या फिर मैं GS में ये ब्लंडर कर दिया. एंड इट कैन हैपन विथ एवरीवन, राइट? इट डजंट मैटर कि आप कितने प्रिपेयर हो. कभी कभी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आपसे गलती हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको सालों का फिर रेपिटेशन करना होता है. तो ये कैसे, हाउ डू यू टैकल दिस? सर मेंटल हेल्थ में सर आई वुड से दैट देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई फेल्ट वेरी एग्जॉस्टेड एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे आई हैव रीच्ड माय लिमिट, इसके बाद मैं और नहीं पढ़ सकता. दैट मेंटल एक्सर्शन वाज देयर. आई वाज नॉट एबल टू प्रोसेस एनीथिंग and it happened within 10-12 months into the preparation. So sir, I realized that the meditation helped a lot. So Meditation. I started Vipassana meditation. So that meditation actually helped me a lot. फाइन. कोई इसका टिप्स हैं जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं, फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं, कुछ टिप्स? Well, so sir, I thought that मेमोरी के लिए कुछ, खुद को एंगेज करने के लिए कुछ है ऐसे कुछ टिप्स? सर मैं जब विपासना गया पहली बार, सो आई रियलाइज दैट द लास्ट बेस्ट टाइम दैट आई शुड हैव गॉन देयर वाज व्हेन आई वाज 18 years old, because that's when they allow you, and the second best time was now. And so every time I'm there, I've done 5 times I've been to their 10 days of camps. So every time I'm there, on the 10th day I make a promise to myself कि यार ये जो 10 दिन का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको कंक्लूड करके मैं यही कह सकता हूँ कि आई हैव टू कम हियर अगेन. तो लेट्स से कोई 10 दिन बाहर निकल के आते हैं, बाहर निकल के आते हैं वहाँ से, तो सर फिर ये हो जाता है कि
50 तरह के challenges हैं life में, there are so many urgencies, Real world is emergencies. different. Yes sir, but then sir that 10th day पे जो promise करके आता हूँ अपने आप से, that is what takes me back there and I've never been तो कुछ disappointed. और सिंपल इनपुट्स कोई और बताओ जो मतलब बच्चे जो कर सके अपने डे टू डे लाइफ में. चलो Sir, एवरीबॉडी कैन नॉट. meditation is one of the things. ओके. Sir, meditation में हॉबी. yes sir, hobby. Being a hobby is also important. Yes sir, I think I used to journal. Who's trying? So that helped me to process whatever I've been going through. Correct. Maybe it could be emotional, it could be It's a way- intellectual. It's a ventilation. Ventilation, yes sir. ठीक है. बहुत बढ़िया. वो तो एक it is a very good thing. Fine. But let's say music है. Right? Learning, people dance, aerobics, lot of things are there, right? सर इसमें एक चीज़ है सर कि if you're just listening to music, if you're just listening, maybe watching a movie, so it is the same process through which you learn. So you're not taking rest actually. Correct. So if you are actually singing something, if you are performing in a drama, You are part of that. then it will actually help you relax. Fine. It will Yeah. rejuvenate you. Okay. Being in the process and observing the process, they are two different. Two different things. If you're observing just, But hobby helps, right? yes sir, hobby interview- definitely helps. In interview, definitely they would have asked you about your hobby or some extracurricular activity. That is very important. Yes sir. तो ये शुरू से रखें तो बहुत अच्छा है. इससे दो पर्पस सर्व हो जाएंगे कि आप इंगेज भी रहोगे, बोर भी नहीं होगे. So like sir, Oh, some people write Korean drama, watching Korean drama as their hobby. So होता क्या है सर उसमें, like I have been in that loop जहाँ पे पढ़ने बैठा हूँ एंड देन फिर वो कुछ देखना है बीच में यूट्यूब पे, हाँ, 1 मिनट का 2 मिनट का शॉर्ट्स देखना है एंड देन आई रियलाइज कि आई हैव बीन टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन रादर देन टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम स्टडी. तो रील देखने में बहुत मजा आ रहा है और उसके बाद 5 मिनट पढ़ भी लिया, वो प्रोसेस ही रिवर्स हो जाती है सर. सो ये भी एक मतलब यू हैव टू कीप अ टैब कि आपको कंट्रोल रखना है कि हॉबी को एकदम पैशन में बना दो, है ना. सर यू डोंट हैव टू कंज्यूम इट. हाँ. So as long as you're consuming things passively, it is not a hobby. क्योंकि बहुत बड़ा इशू है. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब फोन के ही डिजिटल एरा कई बच्चे हैं, Yes sir. तो उनके लिए तो ये फोन एक बहुत बड़ा मीडियम है ना हर चीज हाँ सर, करने का. कंजम्पशन इज नॉट हॉबी. सो दैट्स मतलब ये सर जब भी हम कुछ डिफाइन करते हैं ना, इवन एसे में जब मैं डिफाइन करता हूँ तो आई टेल व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज एंड व्हाट इट इज नॉट. तो वन ऑफ द टॉपर्स सेड कि मैंने फोन बंद करके रख दिया. बट क्या ये एक्सट्रीम स्टेप ठीक है? क्योंकि फोन भी एक मीन्स है आपको इन्फॉर्मेशन देने का. फाइन. You don't need information that much. नहीं, बट टू So बी there are standard books. to be There- connected is also important. Like, I mean, I think ki today is the word of knowledge, like you said. Yes sir. Fine. And if you want to read newspaper, I know there is physical availability, but ज़्यादातर लोग जो है डिजिटल सब्सक्रिप्शन पे हैं हाँ सर. या उनको अपडेट्स आते हैं. चलो वो अपडेट बंद कर दो क्योंकि बार बार आप नहीं देख सकते फ़ोन को. बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ है. And then like you said, you get diverted to that, right? But वो अपडेट रहने में कोई खराबी तो नहीं है. खराबी है इस चीज में कि द वे आर डिवाइसेस आर डिजाइंड, दे आर नॉट डिजाइन टू हेल्प अस, दे आर डिजाइन टू टेक आवर अटेंशन अवे फ्रॉम अस. तो सर उसमें आई हैव अ फ्यू टिप्स दैट द थिंग्स दैट आई डिड. Right. तो जैसे जो फोन का कलर होता है सर, यू कैन डिसेबल द कलर्स. मेरे को सर मैंने कलर को डिसेबल किया. इट वाज वेरी टफ टू डू इट बिकॉज टफ इन द सेंस वो सेटिंग ढूंढना ही इतना अपने आप में महाभारत है. Right. And when I was able to do that, so only that point I was able to see color of these flowers. Like, कितने beautiful हैं. कि world is also very colorful. Otherwise those colors वो बाहर take you away. वो बाहर निकलने नहीं देते screen से. बिल्कुल बिल्कुल वो दे कैप्चर ही हुआ. Secondly sir, ये कुछ I think iPhone में तो सर ये do not disturb वाली कुछ settings रहती हैं. उसमें notifications को club कर देते हैं. It is still better. एंड्रॉयड में आई थिंक डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे शायद डालेंगे तो शायद इट हेल्प्स. हाँ, इंपॉर्टेंट वो भी मिस हो जाते हैं. बट ये बोल सकते हो कुछ ऐप्स को आप डिसेबल कर सकते हाँ सर, कुछ ऐप्स को डिसेबल कर सकते हैं. देयर आर सम लॉक्स दैट यू कैन अप्लाई हैं. डेफिनेटली. कि इसी चीज को इसी ऐप को खोलना है. देन फिजिकल एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है. यू रेकमेंड? यस सर, वॉक्स आर इंपॉर्टेंट. वॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिटेशन में जाने के लिए भी कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी भी हाँ इंपॉर्टेंट है. सर, एक्टिव. यू कैन नॉट सिट फॉर 10 मिनट्स इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, राइट? राइट सर. फूड हैबिट्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ें जो हम ध्यान नहीं देते बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक बच्चा रोज छोले भटूरे खाता है तो वो कैसे तैयारी करेगा ये बताओ. फाइन. या वो बाहर रोज मोमोज खा रहा है, वो राजेंद्र नगर में जो बड़ा पॉपुलर है वो,
हाँ, तो वो कैसे करेगा तैयारी? ये दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, राइट? माइक्रो लेवल थिंग्स, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट सर उसमें आई वुड से दैट सर क्या होता है ना, इन दिस प्रोसेस 10 लाख पीपल अप्लाई फॉर द एग्जाम, 5 लाख आर अपेयरिंग एवरी ईयर, राइट. उसमें से सर ओनली 50,000 आर एक्चुअली सीरियस अबाउट इट. But you see, if 5 lakh are preparing, यस सर. fine, we can see in future कि भाई 2.5 lakh at least are willing and committed to the task. तो actual competition like you're saying is within 50,000. यस सर. Fine, but इसका मतलब बाकी के जो लोग हैं वो सिर्फ एक process में हैं. सर उसकी प्रोसेस में उसकी बट seriousness क्या होता को है समझ नहीं पाए हैं. सर, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि द हैबिट्स दैट यू आर हैविंग आर एक्चुअली very opposite of what you should be doing. Doing. बिल्कुल. That is what I'm trying to say. Yes. कि वो 2.5 lakhs में जो 2 लाख बेचारे जो मिस आउट कर रहे हैं, Yes. उसका एक बहुत बड़ा रीजन सिर्फ पढ़ाई नहीं हो सकता. ये भी हो सकता है कि उनकी खुद के ऊपर या सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, राइट? हाउ दे हैव नर्चर्ड देमसेल्व्स मेंटली एंड फिजिकली बोथ Yes. फॉर द एग्जाम्स, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा वो लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम पे बीमार हो गए, या कुछ बच्चे यहाँ पहुँचते ही बीमार होने लगे कि भाई हमें पानी नहीं अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है. तो ये फैक्ट है. ये मैं क्यों आ रहा हूँ इस पॉइंट पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? अब एक बुक है इंग्लिश ऑगस्ट बाय उपमन्यु चैटर्जी, राइट? मैंने क्लास में ही बोला एक दो बार Yes. कभी. तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है. अब शायद पढ़ोगे, तुमने पढ़ी है? अगर पढ़ी सर आई वेंट टू रीड इट. एक मूवी भी बनी है सर Movie उसके ऊपर, बनी. बट वो लॉस्ट हो गई, इसकी डीवीडी लॉस्ट भी नहीं अब आती है, हाँ सर. बट वो बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है कि एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ ब्यूरोक्रेट, एक लड़का आता है और वो गवर्नर का बेटा है, एंड ही बिकम्स एन आईएएस ऑफिसर, यस सर. एंड ही गेट्स प्रोबेशन या उसकी पोस्टिंग जो इनिशियल जो ट्रेनिंग पीरियड है वो बंगाल के सबसे रिमोटेस्ट एरिया में हो जाती है. वहाँ मच्छर, लैक ऑफ वाटर, प्रॉपर वाटर, लैक ऑफ पीपल, फाइन, कोई आसपास उसके नहीं है. मतलब वो जो लाइफस्टाइल वो जीता था, फाइन, ही इज इनटू लॉट ऑफ थिंग्स, वो लाइफस्टाइल उसको दूर दूर तक नहीं दिखती. एंड हाउ ही कोप्स अप विद दिस, आई एम कमिंग टू दैट आइडिया. व्हाई? बिकॉज सी, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि जो आपको करना है 30 साल, वो अभी उससे भी ज्यादा रिग्रेस है जो आपने किया है उस तक पहुंचने के लिए, अगर आप अच्छे से करना चाहते ट्रू सर. हो, राइट? आपके पास पूरे सिस्टम का सपोर्ट है, यू हैव एवरीथिंग, नो डाउट, पैराफर्नेलिया पूरा है, गाड़ी है, आदमी है, सब कुछ है, राइट? लेकिन वो जो डिसीजन आपको लेना है दैट इज वेरी वाइटल. तो उसमें जो सेल्फ डिसिप्लिन है, फाइन, या वो जो एक स्ट्रॉन्ग विल और माइंडसेट है, वो दैट इज डेवलप्ड राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन, राइट? ट्रू. इट कैन नॉट बी आई एम वेरी कैजुअल इन प्रिपरेशन बट आई विल बी वेरी स्मार्ट इन माई डिसीजन मेकिंग एज अ कलेक्टर. ये तो नहीं हो सकता कि भाई बहुत ही कैजुअल डीला डालस आदमी जो है तैयारी में तो ऐसा है, बोलता है कि मैं बनने के बाद ट्रेनिंग हो जाएगी मेरी. नहीं, क्योंकि शायद ट्रेनिंग में भी वो सूटेबल नहीं होगा. राइट सर. बहुत सारे लोग तो ट्रेनिंग से भी निकाल दिए जाते हैं, मैंने मतलब दैट इज ट्रू. कम निकाल रहे हैं अब तो, पहले तो हो जाता था, फाइन, अब तो चलो वो पास भी करा देते हैं यूनिवर्सिटी. तो लेकिन फिर भी यू कैन अग्री कि भाई यहाँ से हैबिट्स आर नर्चर्ड एंड हैबिट्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इन योर सक्सेस. यस सर. इनफैक्ट सर जो ये जो आपने बात बोली सर कि द actual 30 years are very much more rigorous than these 5 years of preparation, because करेक्ट. sir वो once you are into the job, it's a 24/7 job. यस, आप बिल्कुल, There is so many things that we have to solve. आप नर्चर नहीं कर There is so much to learn. There is so much to grow. पाते. There is so much to understand. If you really want to work for the people, तो sir Correct. इतना dimensions है काम करने के लिए that the 24 hours becomes less. लेस, बिल्कुल. तो सर वो जो है ना, ये जो पैराफर्नेलिया का जो वो रील्स में दिखाते हैं सर, वो आई टॉक टू सम ऑफ माय बैचमेट्स, तो सर उनका वो 2 महीने 3 महीने इतना ही रहता है. 4 महीने से ज्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा. इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता सर. वो फिर वो तो प्रिवेसी कंसर्न्स होने लग जाते हैं. सेल्फ रिस्पेक्ट भी है भाई, आपकी डिग्निटी ऑफ वर्क है, आपका कंपटीशन है. यस सर. भाई आप बाहर तो सबसे कम्पीट कर रहे हो, वहाँ तो सारे ही आईएएस हैं, यस सर. भाई सारे यूपीएससी क्रैक किए हुए हैं ना, अब उनसे कम्पीट कर रहे हो. यस सर. दैट इज वेरी टफ, क्योंकि बाहर तो वैरायटी ऑफ लोग हैं, हाँ right? सर. तो मेंस लिख लिया मैंने, इंटरव्यू दे दिया, चलो आप अच्छे हो, राइट? वहाँ तो सबने वही क्रैक किया हुआ. इमेजिन द लेवल ऑफ कंपटीशन एंड द स्ट्रेस यू माइट बी हैविंग, एनीबॉडी हु इज देयर. यस सर. कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो उसके ऊपर है ही नहीं, बिल्कुल सर. बोझ तो है ही. ठीक है, फाइन. अच्छा, तो हम एक वर्ड में सिर्फ मुझे बताओ, तो यूपीएससी क्या इक्वल टू हार्ड वर्क इनटू लक, राइट? हार्ड वर्क इनटू परसिस्टेंस इनटू लक, और शुड वी एलिमिनेट लक? जस्ट इन वन वर्ड. So I think we should eliminate luck. Because मैं तो सर ये मानता हूँ कि लक अगर है दुनिया में तो मेरा ही सबसे अच्छा है. ओके.
what can we do about it? Positive. Optimism. We cannot do anything about luck. तो सर अगर हम ये माने कि लक मेरा ही सबसे अच्छा है तो हो सकता है मेरे साथ आउटकम बुरा आए, एफर्ट वो कर सकूं मैं, सर हो सकता है आउटकम बुरा आए, बट फिर भी मुझे लगा कि मे बी दिस इज ए लेसन फॉर समथिंग बिगर. राइट. बट सर मैं अगर लक को फैक्टर मान लेता हूँ कि बिल्कुल. नहीं हुआ, सो सर फिर तो मेहनत ही नहीं करूंगा. तो मेहनत भी नहीं करूंगा. सर definitely luck has a role to play माइन्यूट हो into reaching to that objective, but it's not in our control, so it's better to believe that it's for the best that is happening to us. क्योंकि बहुत सारे सी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं, दे बिलीव कि एग्जाम इज समवेयर अगेंस्ट और इज समवेयर वर्किंग टेक्निकली अगेंस्ट देम. बट इज दैट ट्रू? मतलब ये सही माना जा सकता है इसको? मतलब मैं इस पे एक एक्सपर्ट राय नहीं चाहता हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग इन जनरल व्हाट डू यू फील एज एन एस्पिरेंट, राइट? उनका नंबर्स भी कम है, Yes sir. सक्सेस रेट यू काफ़ी लास्ट 10 years में देखा जाए तो भी बहुत कम है. फाइन, तो क्या उनको क्या करना है? व्हाट शुड दे डू? व्हाई व्हाट इज इट एग्जैक्टली? इज इट द मीडियम और इज द वे दे कंडक्ट देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ स्टडी कंटेंट, राइट? क्योंकि या तो बहुत सारे वो बहुत ज़्यादा लकीर के फ़कीर टाइप तैयारी करते हैं, क्या करते हैं सर? क्या तुम्हें लगता है? Sir, at one point I myself thought that I should write exam in Hindi, because that's my mother tongue, that's where I can relate to things, that's where I can actually Simplify. understand things. But sir, again, sir, I don't really know कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है. तो सर एक निशांत जैन करके थे, कोई आई थिंक रैंक 35 शायद उनकी थी. तो वो बताते हैं कि मेरा पेपर छूट गया, तो कह रहे कि मैं रोज 9 घंटे लिखता था. मजाल है कि पेपर छूट जाए, इट माइट बी डिफिकल्ट, बट सर वो पेपर कंप्लीट करना डिफिकल्ट हो जाता है हिंदी में, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्ट्रोक्स दैट यू हैव टू मेक. यस यस यस. ऑल्सो सर अब उसमें वर्ड थोड़े फॉर्मेशन है, मात्राएं में इंग्लिश तो इजीली Yes, लिखा sir. जा सकता है. उसमें सर और भी चॉइस ऑफ वर्ड्स ज़्यादा इंग्लिश में, नहीं सर, हिंदी में ज्यादा है. वैसे ज़्यादा है. यस सर, हिंदी लेकिन में. मेरे को लगता है लोग इतने अवेयर नहीं है, क्योंकि अब हिंदी पेपर पढ़ता कहाँ है, कहीं बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं सर. सर ऐसा तो हिंदी पेपर में कुछ अच्छा आता भी नहीं है. अब मैं इल्यूमिनेशन बोलो, दीप्तिमान, यस सर. ठीक है, अब आपको एक वर्ड आ गया दीप्तिमान, हाँ सर. राइट? अब आप उसको सिनोनिम उतनी फास्ट सोचो जितना इल्यूमिनेशन का सोच सकते हो. तो देयर इज अ डिफरेंस. आई थिंक मेरे को लगता है कि अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्कूलों में, तो वहाँ भी हम कहीं उसी मॉडल पे ही तो पढ़ रहे हैं ना, कि भाई ठीक है, उसको इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में लिख दो. नहीं सर, ऐसा नहीं है हाँ. सर. हिंदी में सर इट्स मच मोर लॉजिकल. तो सर एक नहीं, I understand. पाणिनी ग्रामर जो है सर, पानी सो उन्होंने क्या किया सर, 6 A4 शीट्स अच्छा में, यही लिखा है. सर 6 A4 शीट्स में पूरी व्याकरण खत्म हो जाती है. जस्ट 6 A4 शीट्स. और फिर उन्होंने सर क्या किया, उन्होंने 10,000 रूट वर्ड्स निकाले, उसमें से 8,000 तो अभी गायब भी हो गए, वो खो गए हैं. तो 2,000 रूट वर्ड्स हैं अभी सर्वाइविंग. उन्हीं वर्ड से सारे वर्ड्स फॉर्मेशन होते हैं हिंदी और संस्कृत में. ओके. तो यू वुड सी कि जैसे मान लो भगवत गीता में लिखा है एक लंबा सा सेंटेंस है, सब मिक्स करके, ऐसे पढ़ने में भी बहुत दिक्कत हो रही है. Right, ऐसा right. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सर दैट वर्ड फॉर्मेशन वो बढ़ाते चले जाओ सर, आप कितना भी बड़ा वर्ड बना लो. दैट्स द ब्यूटी ऑफ सेंस राइट. बट एंड हिंदी एज ए लैंग्वेज. यू कैन हैव दोस. वही कहने का मतलब है कि जो बच्चे आजकल का जो जो एसएमएसिंग हो गया या मैसेजिंग जो फॉर्मेट्स हो गए या जिफ हो गए, हाँ so सर. they are reducing your focus on language, no? That may be one thing. Sir, I felt that learning English was No, I'm not actually talking about, yeah, but it was actually violence Hmm. on my mind, because sir जैसे शिक्षा, शिक्षक, so vidya, vidyalaya, so these are linked things. So Correct. everything is linked in Hindi. So there is one root word, and then you can transform into maybe 200 different ways, and you can So you generate agree 200 medium words. is not an obstruction. The way people are dealing with that process may be an obstruction. Sir, the way the systems are designed, so it incentivizes English. That is true. Because But sir, inherently, I feel that no, definitely it is our more or less mother tongue. National language तो नहीं बोल सकते, but mother tongue तो है. definitely sir. तो उसके बच्चों को भी, लेकिन they should also, I think they should go beyond the book. उन्हें भी किताब के बाहर थोड़ा झांकना चाहिए. Definitely sir. That is अपने एक्सप्रेशन में आई थिंक दे शुड ब्रिंग मोर लिबर्टी. आई थिंक दैट इज वन थिंग व्हिच माइट बी, ठीक है, चलो लैंग्वेज वो अब लेट अस से कि भाई इफ यू कम टू नाउ द सिंपल मोर सिंपलर पार्ट, अभी तो चलो फाइन, तो योर लाइफ एंड योर, इफ यू कम टू अ सिंपलर पार्ट, लाइक फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर वो बोलता है कि मैं 2027 में, आज हम अक्टूबर में हैं, और वो प्रीलिम्स देना चाहता है नेक्स्ट ईयर,
फाइन, और वो 26 में मेन सीखना चाहता है या 27 में अपियर होना चाहता है, ठीक है, लेट्स से 1.5 years तो लग ही जाता है. नाउ कैन यू टेल मी वेरी प्रिसाइसली, वन, हाउ शुड ही स्टार्ट, what basic things he should do? Whether he joins coaching or studies, that's a different thing. Before that, what basic things he should do for himself? Right, sir. Fine, both academically and non-academically. मतलब उसको फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी बहुत चीज़ें करनी होंगी, तो क्या उसको करना चाहिए, आप ये बताओ पहले, सिंपल तरीके से. बहुत such a broad question. आई नो, बट आई एम आस्किंग, दैट्स व्हाई आई एम yes, सेइंग sir. वेरी प्रिसाइज, क्योंकि बहुत सारे यंग हमारे पास लिसनर्स हैं, Yes, sir. दे शुड नो. So, well, I'll start in parts. तो सर पहला तो from my experience, I started preparation in February of 2021. Right. और prelims was initially 5 months away, but वो कोविड के टाइम पे it got postponed. तो 8 महीने थे मेरे पास prelims के लिए. And I would say that unfortunately I qualified. Why unfortunately? Because then I got into that cycle, repetitive cycle, where Qualified. I would get only 3 months in a year to prepare for mains. I was prepared for prelims in that 8 months, but I was never prepared for mains. Correct. So sir, I had to, in 2023 attempt, I had to tell myself कि मैं सिर्फ 2 हफ्ते पढ़ के जाऊँगा prelims. मैं चाहता हूँ मैं fail हो जाऊँ, because I want to give attention to mains. Otherwise, the cycle is like that. Let's say अभी 2025 वालों ने mains लिखा, 3 महीने they will be in that doldrum that पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा खराब आएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन करूँ या मेंस की प्रिपरेशन करूँ, एंड देन लेट्स से अभी उनको पता भी चल भी जाए तो देन स्टिल अब जनवरी से फिर से वो लगेगा कि यार दोबारा से प्रीलिम्स स्टार्ट कर देते हैं. और इफेक्टिवली सर उस साइकिल में जाना, उस प्रोसेस में दैट यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर मेंस, तो वो चीज़ में ना सर बहुत ही एफर्ट लगता है, माइंड की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है थिंकिंग की. तो इसलिए सर इफ़ समबडी इज वांट्स टू राइट एन अटेम्प्ट और वो अभी सुन रहे हैं, सो 27 इज द बेस्ट अटेम्प्ट टू स्टार्ट विद. ऐसा लगेगा बहुत दूर है, बट दैट इज द आइडियल टाइम इन विच यू वुड यू बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस. इवन सर जो फर्स्ट टाइमर्स की जो स्टोरी रहती है ना कि मैंने तो फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर दिया, सो आई ट्राई टू लाइक लुक डू सम बैकग्राउंड चेक कि भाई कैसे कर लिया फर्स्ट टाइम में. मेरे से तो नहीं हो पाया, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दे कैन नॉट डू इट, बट टू बिकॉज़ बेंचमार्क्स सेट करने ही होते हैं, ऑलमोस्ट सेम इंटेलेक्चुअल लेवल के हैं, तो यस सर. फैक्ट है. सो आई आस्क्ड कि माई सेल्फ कि क्यों ऐसा क्या हो जाता है, तो सर देन आई रियलाइज्ड कि हो सकता है कोई सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज से स्टार्ट कर रखा हो, किसी का बचपन का सपना हो. बिल्कुल. मैं उस पर्टिकुलर डेट को अपने मन में बना के चल रहा हूँ कि आज ही मुझे स्टार्ट करना. मुझे तो सर सिलेबस भी नहीं पता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, बुक्स नहीं पता, टीचर्स नहीं पता, कुछ भी नहीं पता. आई वाज एक्टिवली अवॉइडिंग राइटिंग दिस एग्जाम, एंड देन वन डे डिसाइड कि चलो लिख देते हैं. तो इट टेक्स 2 years, मिनिमम 2 years. ठीक है. तो सर आई थिंक 2027 इज द बेस्ट अटेम्प्ट. ठीक है. नाउ कमिंग टू व्हाट शुड बी डन टू बी एबल टू क्वालिफाई. करेक्ट. तो सर पहली चीज तो ये है कि देयर आर 2 things in the exam preparation. One is quantity, one is quality. And I have seen more often people compromise on quantity aspect of it. उनको लगता है कि I would write the best answer, I would read the best book, I would have the best notes. उस चक्कर में सर वो क्वांटिटी को भूल जाते हैं. हाँ बिल्कुल. So quantity alone will not help, but that's the basic minimum thing that you have to do. So writing 50 prelims tests is not going to get you through the exam, but that's the bare minimum. Correct. There are exceptions where people do qualify without writing a single test. Yes. But that's only exception. They have given a lot of exams before also. Yes sir, that is also one of the things. So sir, at least 50 prelims के टेस्ट तो लिखे होने चाहिए. So that's a checklist that you have to make. और जो वो 50 टेस्ट लिख रहे हैं prelims के लिए, so in that also syllabus रहता है, उसमें बुक्स मेंशन रहती हैं, उसमें कुछ मे बी न्यूज़पेपर या मैगजीन्स मेंशन रहती हैं. सो फॉलो दैट थ्रू, मतलब जो पूरी टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो करो पीछे पीछे कि 4 दिन बाद एग्जाम है तो आई हैव टू स्टडी इट देन गिव इट, स्टडी देन गिव द एग्जाम एंड डू द एनालिसिस. ओके. सो दैट्स द मतलब चेकलिस्ट पार्ट में सर वी हैव टू डू दिस. प्रैक्टिस, रिवीजन, इंट्रोस्पेक्शन. यस सर. सेकंड मेंस में भी सर सेम स्टोरी, that you have to write again 40 tests right before you are in that state of mind कि कुछ भी है लिख दूंगा. Correct. Because of that art of answer writing comes through writing. Correct. एक चीज है, मैं just I'm putting into this
क्वेश्चन इन बिटवीन, एक तो बच्चे का दिमाग है कि ऑप्शनल मैं 3 महीने में कर लूँ, यस सर, 4 में कर लूँ, फाइन, वहाँ पे वो गैम्बल करता यस सर, है ना, वो सिक्का उछालने टाइप की, वे कितने महीने आते हैं उसमें करता हूँ। फाइन, एक है कि जीएस में 14 महीने कर रहा हूँ, देयर इज नो एंड टू जीएस, यस सर, whereas he is fixing more professional timeline on optional. Optional is 500 marks, GS is 1000 marks, you know. GS में अगर आप बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत अच्छा लिखा, तो 400 प्लस ला सकते हो, 450 पा सकते हो, तो आप टॉपर ही हो जाओगे, राइट। ऑप्शनल में भी 300 लाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, ये फैक्ट है, मतलब दोनों चाहिए। मैंने ये भी देखा कि बच्चा कॉन्सेप्चुअली बड़ा स्ट्रांग है, लाइक यू सेड क्वांटिटी भी लिखी, अब वो दोनों मैच कर गए तो उसके नंबर बहुत अच्छा आ गए। तो वो 300 4 महीने में चाहता है, यस सर, और 14 महीने में 450 चाहता है। ये जस्टिफाइड है टाइम का बैलेंस? नो सर, आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड। बिकॉज सी वी हैव बीन सीइंग नो कि अब इस साल भी टॉपर्स यू नो मार्क्स 269 है ऑप्शनल में, रैंक 1 के। ओके सर, फाइन, 270 ऐसे मार्क्स है, ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट। वी हैड अ स्टूडेंट, आई थिंक करिश्मा गॉट 260s में 70s में मार्क्स, रैंक 14, यस सर, राइट। उसके पहले ऋषिता, यू सेड फर्स्ट अटेम्प्ट वाली, 311 yes 311 something, 312, 312, 18th रैंक, फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। तो अब बहुत सारे वायरिड एग्जांपल्स हैं, किसको जीरो डाउन किया जाए, राइट। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, फाइन, कि कौन सा लिया जाए ट्रेंड, कोई ट्रेंड ही नहीं, एक 22 साल का भी हो रहा है, एक 28 साल का नहीं हो पा रहा है, फाइन। तो मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ कि वाई पीपल आर गिविंग सो मच ऑफ अनड्यू इम्पोर्टेंस, कि ऑप्शनल जैसे होता है ना कि वो वही सी सेट टाइप हो गया कि चलो अच्छा मैथ्स आ गई यस सर, तो हम क्वालिफाई कर लेंगे, विच अगेन वी लास्ट की वो मिथ है, जस्ट मैथमेटिक्स इज नॉट सी सेट, राइट। राइट, तो ये हाउ विल यू नो एड्रेस दिस प्रॉब्लम, बिकॉज दिस आई एम फीलिंग एज अ टीचर ऑल्सो कि बच्चों को हम समझाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो उस प्रोसेस के थ्रू जाता ही नहीं है, उसको लगता है मैं कैसे इसको फास्ट ट्रैक करूँ, राइट, सिंप्लीफाई कैसे करूँ, या उसके सिंप्लीफिकेशन का सेंस मीडियोक्रिटी है, या तो राइट सर, एक टीचर शायद अपने परसेप्शन से देखता है कि हाँ यार एग्जाम तो यहाँ आ रहा है, बच्चा बेचारा यहीं तक पहुंचा हुआ है, या वो इसमें से भी चूज नहीं कर पा रहा है कि क्या यूज करना है, फाइन। तो इसको हाउ डू वी एड्रेस, इज दिस टाइम लाइन जस्टिफाइड, इज दिस बैलेंस जस्टिफाइड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, कि जीएस और ऑप्शनल में क्या बैलेंस होना चाहिए, कब तक ऑप्शनल पढ़ना चाहिए, कब तक जीएस पढ़ना चाहिए, राइट। जीएस अगर इनफाइनाइट है तो क्या इनफाइनाइट प्रिपरेशन चलती रहेगी, फाइन। ऑप्शनल में भी तो एक तरह से बहुत सारी चीजें नुआंस्ड हैं, अंडर करंट है, हर चीज आपको लिखा नहीं है सिलेबस में, राइट। यस सर, क्वेश्चन वो पूछ लेते हो, अब बोला जाए तो न्यू वेबरिंग स्टेट कहाँ लिखा है, राइट सर, फाइन, या न्यू पब्लिक गवर्नेंस कहाँ लिखा है, इस बार सारे क्वेश्चन एनपीएम एनपीजी पे क्वेश्चन आ गए, सारे कॉन्सेप्चुअल है। सी आई एम नॉट सेइंग कि इसी साल, हर साल आते हैं बट मिक्स आते हैं, इस साल बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो हाउ डू यू बैलेंस दिस जीएस प्लस ऑप्शनल, क्योंकि बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का राइट, क्वेश्चन है ये। And should they give so much of mediocre time to optional? Should they treat it like an subsidiary too? क्योंकि जीएस में तो बड़े वो कॉन्शियस रहते हैं। सर आई गॉट 266 मार्क्स जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, और तो सर आई फील दैट जो एंड जीएस में भी यू गॉट गुड मार्क, मतलब हाँ, जीएस ऑल्सो सर बैलेंस 400, 400, सो दैट इज गुड, वेरी गुड। तो सर आई फील दैट जो जीएस में क्या है सर, देर आर जो सिलेबस है सर वो ऑलरेडी काफ़ी वेल डिफाइंड है। अनडिफाइंड, जैसे सर अगर जीएस 3 को देखें तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम द क्वेश्चन इज जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ द सिलेबस कीवर्ड, तो सर इट इज एक्चुअली इजी टू कंटेन थीम द जीएस, यस सर। जबकि सर ऑप्शनल में क्या है कि यू कैन कीप ऑन रीडिंग न्यू थिंग्स, डेवलप न्यू पर्सपेक्टिव्स, एंड ऑल्सो सर इट इज अ स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्योंकि जीएस में क्या है कि यू कैन नॉट गो इनटू मच ऑफ द डेप्थ, तो ऑप्शनल इज मच मोर देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सर वहाँ पर अगर ज़्यादा टाइम देते हैं तो सर फॉर पर्सनली आई कैन से कि फॉर मी स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है। जब मैं सर्विस में जाता हूँ तो व्हाट एग्जैक्टली आर वी सपोज टू डू, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जब
चलो मान लिया ये करना है, पता चल गया, फिर जो पहले वाले आए उन्होंने किया क्यों नहीं, ठीक है। या फिर किया है तो व्हाट वर द चैलेंजेस, कि चलो उन्होंने इतना किया है, दिस इज वेयर द बटन इज, तो वेयर डू वी टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ओके, सो एक चीज बोल सकते हैं कि व्हेन यू स्टडी पबैट, यस सर। तो जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग स्किल है वो बड़ी स्मार्ट हो जाती है, स्ट्रांग तो हो ही जाती है कि गवर्नेंस चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है, राइट। डेफिनेटली सर। अब अगर मैं जीएस को बोलूं तो जीएस किस चीज की स्टडी है? उन प्रॉब्लम्स की स्टडी है ना यस सर। भाई, इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। मैं पेपर 2 की बात नहीं इनफैक्ट करता। सर जो मतलब आई वेंट थ्रू द सेकंड ईयर से रिपोर्ट्स, आई नो, तो सर 60% ऑफ जीएस सिलेबस इज कवर्ड इन कवर्ड सेकंड इन ईयर। दैट इज व्हाट वी, बट ऑब्वियसली एक बच्चे के लिए उतना सर पढ़ना जीएस 3 भी पूरा ही कवर्ड है सर उसमें। उतना आसान है नहीं। जैसे ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो ये सोचे, मैं हर बार बोलता हूँ कि आप ये सोचो कि आप क्या एड्रेस कर रहे हो। जब आप बोलते हो मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं सर, तो आप क्या एड्रेस कर रहे हो? कोई भी नई चीज किस लिए बन रही है? यू आर नाउ इन रेलवेज फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बोलूँ ऑटोमेशन हो रहा है यस सर। रेलवेज में, ठीक है। लेट अस से कल हम गार्ड्स की जगह रोबोट्स लगा दें या एआई की टेक्नोलॉजी यूज करें। वाई टू हैव गार्ड्स, राइट? डेथ्स हो जाती हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, अनमैन्ड ट्रेन ऑपरेशन फाटक है, ठीक है, वहाँ पे एआई का यूज कर लें, तो ऐसे बहुत ड्रोन्स का यूज कर लें, बहुत कुछ हो सकता है। मैपिंग के लिए कर सकते हैं, फाइन। प्रिसिशन कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं, भाई पटरी टूटी है कि नहीं टूटी, राइट। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम बोलो कि अच्छा साइंस टेक में क्वेश्चन आता है एआई पे, फाइन, या एनवायरमेंट पे आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे, भाई जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, या EIA नॉर्म्स कैसे चेंज हो गए, फॉर एग्जांपल कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या है, ये है क्या एक्चुअली, इज ऑल गवर्नेंस, राइट सर। इफ आई सिंप्लीफाई इट इन वन वर्ड कि सब गवर्नेंस ही तो है ना। तो जो हम चैलेंजेस हम जीएस में जो पढ़ते हैं, आपने यू सेड कि भाई वो फैक्ट बेस्ड है, प्लस वो थोड़ा चेंज होता रहता है, नो डाउट, लेकिन जो आपको जानना है फैक्ट ही जानना है उसमें, राइट। उसकी जो समझ है वो आपको ऑप्शनल से भी आ सकती है। एग्जैक्टली सर, वो समझ जो होती है, जो फ्रेमवर्क होता है, बहुत अच्छी आ सकती है, जिसके ऊपर ऑल दीज यू विल बी एबल टू कैरी सो मच इन्फॉर्मेशन दैट इज Right. ऑप्शनल। Yes. विदाउट दैट मैं सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा हूँ बार बार ये, यस सर। बिकॉज बच्चा उस यूटिलिटी को नहीं समझता है, ही डजंट वैल्यू दैट, ही थिंक्स कि आइसोलेशन में पढ़ा, अरे भाई इससे तो नंबर आ रहे हैं, इससे तो नंबर आ रहे हैं, इससे, वो ये नहीं सोचता कि मान लो ऐसे 2-3 ऑप्शनल्स हैं। मैं सिर्फ एक की बात नहीं करता हूँ कि वी आर सिटिंग फॉर पबैट, राइट, लेट्स फाइन, we'll always endorse पबैट, राइट, दैट इज माय फर्स्ट लव एंड यू मे बी योर्स। सो मैं ये कहना चाहता हूँ बट कि अगर एक बच्चा अच्छे से पढ़ता है किसी भी चीज को, मैंने भी कहा कि संस्कृत भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो, लेकिन अगर वो किसी भी चीज को इनडेप्थ पढ़ता है, लाइक यू सेड, वो इनडेप्थ पढ़ने का जो प्रोसेस है वो उसके सोचने का प्रोसेस है, नहीं? राइट सर। तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन द वे यू विल राइट एन आंसर इन जीएस, बिल्कुल इवन दो मेनी ऑफ यू नो द सेम फैक्ट, राइट बट हाउ यू प्रेजेंट दैट फैक्ट। सर। इनफैक्ट आई कैन टेल यू द जैसे गवर्नेंस में वी स्टडी हाउ इथनोसेंट्रिसिज्म हैज चेंज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, डेवलपमेंट, हाँ, ठीक, हाउ दिस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन Right. वी स्टडी कि कैसे वो इवॉल्व हुआ है वो सारा कॉन्सेप्ट, एंड हाउ, तो सर उससे जियोपॉलिटिक्स की समझ भी आती है बिल्कुल, कि अगर गवर्नेंस हम लोग लेके आ रहे हैं, सो हाउ अफ्रीकन कंट्रीज में कोई रिफॉर्म्स नहीं काम कर रहे, या फिर राइट, कुछ इंडिया में रिफॉर्म्स काम कर रहे हैं बट कुछ जगह नहीं कर रहे हैं, पर यूएस में नहीं कर रहे होंगे, या वो चीज़ यूएस में हो रही है बट इंडिया में नहीं हो नहीं सकती। हो सकती। सो ऑल दैट अंडरस्टैंडिंग, उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक यू सेड, आज का रेलवे, राइट, आज का एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, आज का यस सर। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, राइट सर। फाइन। तो सो सर जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वही है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, करेक्ट। देन अब एक पबैट का स्टूडेंट है, एफपीएम। देखो, हाँ, सी पीपल मेक दिस प्रोसेस बोरिंग, इफ दे मेक इट लिटिल इंटरेस्टिंग। अपने आसपास वो देख रहे हैं ना, आज जो शादी हो रही है उनके थीम्स बड़े कॉमन है कि नहीं? यस सर। अरे अब तो व्हाट्सएप कार्ड्स आ रहे हैं, यस सर। ठीक है, उसमें मेन्यू भी बड़ा क्लियर कट एक ही मॉडल पे चल रहा है, ठीक है। अब इसको मैं सोचूं कि 1960s में डेवलपमेंट होता तो वो इसी मॉडल पे था कि भाई अमेरिका ने ऐसे मॉडल किया, ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट फॉलो करो, तुम भी डेवलप हो जाओगे, ठीक है। पबैट आपको ये बताएगा कि नहीं हो सकते, या हो सकते हो लेकिन एक लिमिट तक ही जा सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। या जनरल स्टडीज आपको शायद ये बताएगा कि हाँ, ये जो हमने उस समय किया और आज जो हम ये कर रहे हैं, क्या हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई जो हम उस समय कर रहे थे या जो हम आज कर रहे हैं, इसके इम्पैक्ट क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो एक जो डेटा ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग वो जीएस आता है,
right? But एक thought driven understanding वो optional लगता है. See? So in fact, I would say कि there are 3 subjects that get us through the exam. And वो तो सर आजकल एस्पिरेंट कम्युनिटी में काफ़ी कॉमन नोन भी है, बट वो हो सकता है उतना हाईलाइट करके देखा ना गया हो. So the new aspirants might not see it. Essay, ethics, and optional. Yes. These are the 3 things that decide our selection. Micro level पे they have not. तो सर I realized it writing 3 mains कि हर बार मेरे मेंस में GS में बराबर ही नंबर आ जाते हैं, even if I don't study. Okay. अच्छा ये भी बड़ा. बराबर मतलब लगभग बराबर आ जाते हैं. हाँ उतना ही आ रहा है. आसपास के लोगों के भी बराबर से ही आ जाते हैं. तो उतना लेवल ऑफ नॉलेज हाउ मच डिफरेंस वुड कम अगर GS 1 में किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 75 आ रहे हैं, किसी के 85 आ रहे हैं. बिल्कुल फर्क क्या है. कितना फर्क है. सो दैट सेंसिटिविटी इज वेरी लेस इन GS 1, 2 and 3. अच्छा in terms of change. In terms of difference in marks. Correct, I understand. But in terms of कितना एफर्ट डालेंगे change कम ही होगा जो है. Change बहुत कम होगा सर. In essay, ethics and optional, Change the change is very huge, and that is why all these 3 subjects are important. So sir, essay में तो sir people get even 70 marks. हाँ बिल्कुल. किसी के 140 आ रहे हैं. आ रहे हैं. That is the difference between getting rank in top 10 versus not being in the list. इस साल तो ethics में those who have followed a template they have lost marks. उनके बहुत कम नंबर आए हैं. जिन्होंने थोड़ा फ्री विल लिखा है वो शायद उनके नंबर अच्छे हैं. मतलब they have not written mediocre, but उन्होंने थोड़ा कॉमन सेंस लॉजिक पे भी लिखा है तो उनके नंबर अच्छा है. ठीक है. एक ट्रेडिशनल मॉडल पे जिन्होंने लिखा उनके नंबर बड़े कम आए. Right sir. तो इवैल्यूएटर भी डिपेंड करता है इवैल्यूएशन पे भी. Sir, I feel it does. तो एक दो चीज़ें तो आप बताओ कि पबैट की बहुत शॉर्ट में स्ट्रैटेजी. दूसरा कैसे हमने या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा, राइट. और इन जनरल एक ऑप्शनल या इस ऑप्शनल से क्या और कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आपके प्रिपरेशन में. और तीसरा हम जानना चाहेंगे कि यू हैड सम some lot of obstacles when you were giving the exam. Fine, you fell ill, right? You could not prepare the way you could have, right? Because I personally know you told me कि शायद 1 month you wasted for, you lost because of the health. Yes sir. Fine. तो ये मतलब ये बहुत सारे बच्चे इसका एक्सक्यूज देते हैं कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ पाया. ये बहुत कॉमन यू माइट हैव डन कि मैं 0.25 से नहीं हुआ. Yes sir. या मैं 2 नंबर से कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा हूँ. तो ये क्यों, ऐसा क्यों है? एंड इन स्पाइट ऑफ योर हेल्थ एंड द ड्रॉबैक यू स्टिल प्रिपेयर्ड, यू गेव द एग्जाम, क्वालिफाइड. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट जो देने ही नहीं गया मेंस, उसने एक ही पेपर लिखा जबकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट. तो क्या ये सही डिसीजन होता है? तो एक एक करके यू कैन जस्ट गिव द आंसर सो दैट वी कैन कंक्लूड. Right, sir. So starting with the पबैट की strategy क्या थी? हाँ. So sir, मेरी स्ट्रैटेजी तो ये थी कि एक बार सिलेबस से गो थ्रू होके सिलेबस कंप्लीट करो फटाफट जितना जल्दी हो सके. रश थ्रू इट. Correct. So that you at least know what are you supposed to know. ठीक है. 15 दिन में खत्म हो जाए सिलेबस, बट यू रश थ्रू इट. जैसे सर वी वर टॉकिंग अबाउट दिस न्यू होराइजंस बाय मोहित भट्टाचार्य. तो फॉर मी दैट बुक वाज काइंड ऑफ अ मैप फॉर एवरीथिंग. ठीक है, आप जान लो पहले हर चीज को कि कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस्ड है. ब्रॉड पर्सपेक्टिव. So it's a jungle where you know पानी कहाँ मिल रहा है, नदी कहाँ से जा रही है. So you know the position of कि शेर कहाँ रहता है, हाथी कहाँ पे घूमते हैं. ठीक है. So once you know the ground reality कि ये चीज़ें हैं, ये पढ़नी है, ये टॉपिक्स हैं, ये थीम्स हैं, सिलेबस का ये कीवर्ड्स हैं या यूनिट्स हैं. बेसिकली यूनिट्स इज ऑल्सो वेरी ब्रॉड. तो ये यूनिट्स हैं और ये यूनिट इस बुक में इस तरीके से दे रखी है. ओनली व्हेन यू नो कि ऐसा कुछ है. तो इसमें सर मटेरियलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है, मे बी 1 month 2 months की मेरे को एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, व्हाट एम आई सपोज टू नो, व्हाट एम आई एक्सपेक्टेड टू नो. सर दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई फील एवरी एस्पिरेंट शुड डू. एक्सप्लोरिंग की सिलेबस है क्या. डोंट मिस आउट ऑन एनी डिटेल. फर्स्ट मेक अ मैप ऑफ व्हाट एम आई सपोज टू नो. Second thing is, sir, to look for the resources. Sir, that could be the videos, your lectures was one of the things that was, again, sir, that was an expansion of the things. So, this is, sir, one thing very good that I notice in your videos is, आप एक topic उठाओगे कि evolution of public administration, and then you start expanding. I would think, okay, now, sir, we'll stop. Then you expand with the different layer, next layer, and then you give that in an entire unity of
you know, the unity of the subject itself. Logic is clear. कि हम यूनिट 1 ही पढ़ रहे हैं, बट आई स्टिल अंडरस्टैंड कि अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल क्या होता है. आ गए. आई नो कि Idea डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. Idea is maintained. जो Idea, idea है yes. वो. ठीक है. So sir, you have to find one source like that. It could be anything, Right. but something that puts all the content into one unity. Correct. It could be जैसे सर आपने पूछा कि your contribution in my journey, so I would say sir that was the contribution कि I learned to expand the things. But then sir वो I had to learn by myself कि how to now contract it and put it into the paper. और yes, लिखना भी है. लिखना भी है उसको सर, क्योंकि इंटरलिंक करके सर ये हो जाता है फिर now I can write a book on this question. Correct. अब क्या करूं? Like what are the aspects that I necessarily need to write? नहीं, understand. बिल्कुल. ये भी एक प्रोसेस से ही आता है. But sir, that is also like an interesting part because that is what makes us visionary. Yes. हम leadership position के लिए fit तभी होते हैं when we know कि अच्छा all these things exist. Yes. And then how I pick and choose. How I pick and choose things. ठीक है. So PubEd एक अच्छा future ready optional है. Sir, for me definitely it was. As the UPSC chairman has already said कि भाई the change is not going to happen. Yes sir. So do you place it now somewhere in future कि भाई it is the core of the civil services, no doubt about it, right? And I agree कोई optional की utility उसको qualify करने में है. सर कोई इंसान अगर सच में देश की सेवा करना चाहता है तो उसको पता तो हो कि वो करने क्या वाला है. ट्रेनिंग में नहीं सीख पाएंगे सर. इंटीग्रल है टू द एग्जाम, टू द प्रोसेस जो आप करने वाले हैं. सर मैं एक चीज़ हमेशा ही सोचता हूँ कि दिस एंटायर प्रिपरेशन जर्नी मैं सक्सेसफुल हो गया. सो दैट इज द सक्सेस ऑफ माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, माई गार्डियंस, माई फ्रेंड्स हु वर देयर विद मी, जिन्होंने इन सारे सिचुएशन में मेरे को सपोर्ट किया, वट एवर जर्नी आई हैड. तो सर ये उनकी सक्सेस है, नॉट माई सक्सेस. बिल्कुल. मेरी सक्सेस तो ये होगी कि मैं अगले 25 साल जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में तो मैं क्या करता हूँ. एंड फॉर दैट I need to have that mental integrity कि yes, I've come to this service not to get acclimatized to the system that exists, but to reform it, to change it, or bring the clarity. To be the change in that. Yes, to be the change, and then बिल्कुल. That would follow. क्योंकि sir, when we are good, then people take it as an inspiration. Like in the book, Anil Swarup in the book, no? Yes. Book on ethics, he is writing कि हमें निशाना भी लगाना है, परिंदों को भी बचाना है. Right? He talks about कि भाई you have a dual role to play. Right sir. लोगों को भाई आपको बंद भी करना है, शूट भी करना है, लाठी चार्ज भी करना है, बट सिटीजन की सामने अपनी ट्रस्ट और इंटीग्रिटी को बचाना है. तो PubEd एक नो डाउट एक जर्नी है, राइट? आप बोलते हो कि इट इज प्रोसेस. सर मैं अभी आई मेट DMRC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिले थे. तो सर आई कुड सी दैट ऑनेस्टी इन हिम कि व्हेन देयर वाज अ मिस्टेक ही वुड से यस इट वाज माय मिस्टेक. I asked him कि सर आप why did you stay with DMRC? Because deputation पे जाते हैं. He is an IRTS officer. So deputation पे जाते हैं 5 साल के. So why did you stay with DMRC? तो सर people could have said कि अरे मेट्रो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी है, we had to take it forward, take country forward. But then sir in his answer I could see very much honesty कि he had some personal reason. He told me that reason. Generally sir मेरे ऑनेस्टी के लेवल से भी he was notch बहुत ऊपर. फेकिंग इंटीग्रिटी नहीं है. And that is why वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी है. बिल्कुल. And if अगर जो अगले 25 साल हैं, so I have to embody that knowledge. बिल्कुल. So my success would be कि मैं उसमें सर्विस में रह के क्या करता हूँ. करेक्ट. बिल्कुल. So और तुम्हारी पर्सनल जर्नी, जब मैंने पूछा कि भाई अब बच्चों को तबीयत खराब है, सिर दर्द है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, मूड खराब हो गया, थोड़ा चेंज चाहिए, तो क्या बोलोगे? मतलब जो तुमने खुद एक्सपीरियंस किया है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग इल हेल्थ, राइट? 3 times, ऑल दी 3 times है ना, कुछ प्रॉब्लम थी. सर मैंने सर कैसे डिड यू ओवरकम? सर मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, आई टोल्ड यू फरवरी 2021 में मैंने स्टार्ट किया. फिर उस साल सर मेंस जो था वो जनवरी में हुआ था, जनवरी 2022 में. तो सर एक तो प्रीलिम्स मेंस के बीच में सर मेरे को डेंगू हो गया. मैं पहली बार दिल्ली आया था, मुझे आते डेंगू हो गया. तो सर फॉर 15 days आई वाज लाइक कि भाई ये क्या हो गया, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है. इट वाज बर्निंग लाइक हेल. सर दर्द हो रहा है. सर इट हैपेंड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. इट वाज इन लेट अक्टूबर एंड नवंबर. तो सर 15 दिन वहाँ पे चले गए. दैट कॉन्टिन्यूटी ब्रोक.
फिर सर क्या हुआ, व्हेन आई वाज इन दिल्ली राइटिंग द एग्ज़ाम, तो सर उस टाइम पे वो कोरोना की वेव चली थी एक, और सर इट वाज अ सीवियर कोल्ड वेव। ओके तो सर मेंस का मैं एग्ज़ाम लिख के आया हूँ, एंड देन फॉर 5 डेज़ जो मिलते हैं बीच में, ठीक मेरे को सर 102 डिग्री बुखार था ओके इन द मेंस इन द इन द मेंस मेंस पीरियड। और सर फिर इंग्लिश हिंदी वाला जो पेपर रहता है, लैंग्वेज पेपर, उस दिन मैं पेपर लिख के आया और मेरा सर घूम रहा था। आई थॉट कि शायद रेस्ट करूँगा तो हो जाएगा, तो मुझे लगा कि नहीं चलो सुबह उठ के पढ़ लेंगे। तो सर मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे, एंड और ज़्यादा घूम रहा है सर। आई वॉज नॉट एबल टू बैलेंस, बैठे बैठे सर घूम रहा है, जैसे झूले से उतर के घूमते हैं ना, वैसा वैसी फीलिंग आ रही थी। सो मैंने 1 घंटे तक वेट किया, देखता हूँ कुछ शायद ठीक हो जाए। देन आई कॉल्ड माई फादर, ही वॉज इन रोहतक, ओके और दिल्ली तक मतलब इट्स 2 hours ऑफ जर्नी। तो ऐसे तो आई कॉल्ड हिम इन द मॉर्निंग कि मेरे तो सर घूम रहा है, एंड आई वाज क्राइंग कि एग्जाम है एग्ज़ाम है। तो वो मम्मी कह रही है बेटा हमें तो तू ज़रूरी है, एग्ज़ाम को मार गोली, नहीं लिखना। मैं But कहा, मैं तो लिख के आऊँगा, सालों की मेहनत इवन इफ आई फेल आई वुड राइट द एग्ज़ाम। Yeah. मुझे पता है मैं नहीं करने वाला क्वालिफाई, बट आई विल राइट द एग्ज़ाम राइट कम वट में। तो सर वो सर घूमने वाली टैबलेट ली, ऐसे वोमिटिंग हो रही थी, जैसे झूले से उतर के होता है ना सर, जैसे आई सर। अंडरस्टैंड तो सो इट वाज, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई वाज हैविंग दोस काइंड ऑफ समथिंग थिंग्स। लाइक दिस तो सर फिर whatever happened, I went and wrote the exam, जी। and I got 198 marks in PubEd. बताओ in spite of that Sir, I didn't have that facts with me, yes but I could write whatever was asked. correct in fact you were not in the mental and intellectual health सर मैं ऐसे करके लिख रहा था पेपर कि उल्टी ना होए हैं because as soon as I would move my head, चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हो थे, जाता है and then vomiting, it felt like vomiting. जी Vomiting हुई भी, vomiting, and oh, that is the kind of persistence and guts required to clear the exam no doubt एंड सर फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, अब क्योंकि क्या था सर, बिकॉज जस्ट विद इन 5 months वॉज अगेन प्रीलिम्स। films 5 महीने भी नहीं सर, मई में प्रीलिम्स था, सो 4.5 months। तो अब सर मेंस को इम्प्रूव करने का टाइम तो ज़्यादा मिला नहीं। मिला एंड देन फिर क्या हुआ सर, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आई थॉट इस बार दिल्ली नहीं जाऊँगा, डेंगू हो जाता है वहाँ पे, बट हफ्ते में 1 दिन अप डाउन तो कर सकता हूँ। तो सर वो क्या हुआ सर, वो कैब में आ जा रहा था सर, पहले वीक में आया तो आई वाज फाइन, दूसरे वीक में आया सर लॉन्ग कोविड हो गया। again फिर उस लॉन्ग कोविड के अंदर ही सर 10 दिन बाद ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ इम्प्रूवमेंट होगी हेल्थ में, टाइफाइड हो गया। फॉर 35 days आई वाज ऑन बेड। destiny was trying to stop you है but you were हाँ going सर, at बिल्कुल सर, बिल्कुल ये लग ही रहा है इट वाज टेस्टिंग मी कि 6 टाइम दूंगा कि नहीं नहीं दूंगा। देगा सही बात है तो सर मैंने मतलब सर 35 days तक आई वाज इन बेड। मेरे को 99.5 99.6 ऐसा फीवर था। इट्स अ काइंड ऑफ फीवर वेयर यू, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो मेडिसिन भी नहीं लेनी, बिकॉज दिस बॉडी इज ऑटोमेटिकली ट्राइंग टू मेक इट सेल्फ। तो जब तक 100 से ऊपर ना जाए तो पैरासीटामोल नहीं लेनी। एंड आई एम हेयर इन 99.5 डिग्री फीवर फॉर 35 days। okay सर बॉडी वाज फीलिंग एज इफ एवरीथिंग वाज क्रम्बलिंग, मतलब ऐसे। incapable to सर द डे व्हेन आई वाज, आई मीन इवन इन दैट हालत सर, वो टाइफाइड में क्या होता है, जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल पूरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, बॉडी में बिल्कुल हालत बची नहीं हुई। आई एम Great. स्टिल राइटिंग फुल एंड टेस्ट कि नहीं ये तो लिखना ही है। एंड सर फिर आई कुडंट कंप्लीट एनी ऑफ द पेपर इन दैट 3 months ऑफ ड्यूरेशन। और फाइनली सर जब एग्जाम था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई कुड कंप्लीट माय पेपर। पेपर बट सर उसमें भी देयर वाज जॉइंट्स पेन हैपनिंग ऑल द टाइम। तो पेन किलर वगैरह लेके गया था साथ में कि और उसको रोक नहीं सकते हाँ, रुक भी नहीं सकते सर। एक तो ले नहीं सकते नहीं सर, वो तो लोग बोलते 7-8 मिनट मिलता है, कभी कभी 10 भी लग जाते हैं क्वेश्चन में। फाइन, तो अगर एवरेज देखा जाए तो बिल्कुल यू डोंट हैव 3 hours मिनट इन, नॉट इवन 10 minutes ब्रेक इन 3 hours टाइम, राइट? यू हैव टू राइट इट। नहीं सर, 10 minutes इज टू मच। हाँ मतलब एक बात कह रहा हूँ, अगर नॉट इवन अ मिनट ऑफ चाहो कि हाँ ठीक है मैं क्वेश्चन भी थोड़ा मेंस में तो ऐसा हो जाता है, योर आईज आर मूविंग लाइक दिस, योर हैंड इज मूविंग लाइक दिस, सेम स्वीप रेस्ट एंटायर बॉडी इज कंप्लीटली स्टेबल। तो जब 3 घंटे बाद यू रिलैक्स तो बॉडी अकड़ी हुई रहती है, पूरे बॉडी में पेन हो रहा होता है, एंड इट्स दैट आर्डस। हिलते भी नहीं। हाँ सो मेंस का एक्सपीरियंस सर ऐसा रहता है, बहुत आर्डस, बट फॉर मी इट वाज पर्टिकुलरली मोर डिफिकल्ट। Yeah. सर दैट अटेम्प्ट आई गॉट 721 marks मेंस में, एंड द कट ऑफ वाज 745।
मतलब आई एम श्योर वो जो 35 days थे, इट कुड हैव मेड अ लॉट ऑफ Big डिफरेंस difference, correct. कि हाउ आई प्रोसेस थिंग्स, बट देन आई हैड टू कंटिन्यू कि करना है तो फिर, एंड दैट्स So you व्हाई didn't give up. देन दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अब 23 वाला ना आई विल स्किप द प्रीलिम्स, मतलब प्रीलिम्स देने तो जाऊंगा बिकॉज आई हैव गॉट सो मेनी अटेम्प्ट्स, अभी 4 Because you बाकी हैं, wanted time to study. बट फेल हो जाऊंगा तो अच्छा है, बट somehow it so happened क्योंकि you were persistent when the destiny was trying to stop you. क्योंकि तुम लगे रहे, वो तुम्हारे खिलाफ चल रही थी, हाँ सर, इसलिए वो 23 में उसने बोला कि ठीक है भाई इसको। मतलब सर वो क्वालिफाई भी सर कितना, आई गॉट 6-7 मार्क, 8 मार्क्स से सर वाज अबव द कट ऑफ प्रीलिम्स की। नहीं, सर- बट कहने का यू क्वालिफाइड। हाँ सर, आई क्वालिफाइड इट, तो सर अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट होता वो बोलता कि ठीक है यार चलो अब थोड़ा तो ब्रेक ले लूं। उसमें सर क्वालिफाई भी कैसे किया सर, वो उस टाइम सर ऑप्शंस बहुत डिफिकल्ट आए थे, 2023 वाला पेपर वाज अ पेपर, गुड तो पेपर। उसमें सर ऑप्शंस बहुत डिफिकल्ट आए थे, तो आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्जाम वाला लाइक यार ये तो नहीं हो रहा, बट एज सुन एज आई सॉ द सी साइड पेपर, ऐसे भाई ये तो और भी मुश्किल है, अब तो हो जाएगा मेरा। हाँ तब हो जाएगा बिल्कुल। बिकॉज फॉर अदर पीपल वो सर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंजिंग पेपर था सर, इट शुड नॉट हैव बीन लाइक दैट, बट डेस्टिनी प्लेज गेम्स विद पीपल। हाँ तो लोग जो करते रहते हैं ऑब्वियसली वो तो कुछ तो कहीं तो पहुंचेंगे, लाइक यू सेड यदि प्रिपेयर समवेयर वी विल रीच। दैट्स व्हाई आई सेड कि लक का जो है ना सर रोल ये है कि इफ देयर इज लक देन आई हैव द बेस्ट लक, करेक्ट। so there could be some reasons because of which I didn't qualify initially, Right. because I had to prepare certain things, I had to mentally prepare myself for the next 25 years, because sir वो जो that period was जो interview preparation का phase था, जो mains की preparation का phase था, that period changed me completely. ऑब्वियसली आपके अंदर अगर नहीं है वो तो ये फैक्ट है कि उस पोजीशन पे जाके भी आप वापस आ जाएंगे। Right sir. यू नो 25% एट्रिशन रेट है आईएएस में, 14 साल के बाद 25% ऑलमोस्ट लोग नौकरी छोड़ देते हैं। Yes sir. चाहे वो पॉलिटिसाइजेशन बोले चाहे जो बोले, बट वो उस नौकरी के साथ आता ही है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते ना Yes sir. कि मैं 24 आवर्स काम नहीं करूंगा, तो नौकरी के साथ आता है। एक डीएम का कैंप ऑफिस है, कैंप ऑफिस मीन्स उसके घर पे ऑफिस है। Right sir. ही कैन नॉट से नो टू दी चीफ मिनिस्टर, राइट, कि सर मैं तो सो रहा हूँ, हाँ नहीं कर सकते। तो ये फैक्ट है, और वही प्रोसेस आपको एग्जाम में फॉलो करना है या मानना पड़ेगा कि मुझे करना है। right sir. फाइन। सो I mean, it didn't have to be that tough, but नो आई एम नॉट सेइंग डोंट बर्डन योरसेल्फ, yes. बट एटलीस्ट इसके लिए तैयार तो रहो। कम से कम ये तैयारी कर रहे हो तो इतने तैयार, तो ग्लोरी के लिए तो कुछ तो गट्स चाहिए ना। Yes, sir. When the going gets tough, the tough gets going. Yes. That So with this we'll wrap up now. You are also speaking, I'm also speaking. So thank you all of you for listening to us. And as you can see how and what stuff, what metal public servant or bureaucrat is made of. Later what happens in the story, that's a different part. Ultimately how this story unfolds वो एक अलग चीज़ है, right? बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है, तो लेकिन सच्चाई यही है कि जो भी वहाँ तक गया है या उस प्रोसेस को जिसने भी फॉलो किया है उसने बहुत सेक्रीफाइस किया है, और बिना उस सेक्रीफाइस के आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। जो भी लोग ये सोचते हैं कि शॉर्टकट्स काम कर सकते हैं, बिल्कुल मुझे लगता है कुछ लोग ने वो काम करते भी हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो फिल्म हो, एंटरटेनमेंट हो, एकेडमिक्स, कुछ भी हो। लेकिन वो जो शॉर्टकट वाले लोग हैं, पहली बात तो शायद उनके ऊपर भगवान का स्पेशल हाथ होगा, और दूसरा वो जो सस्टेनेबिलिटी है उस शॉर्टकट की वो बहुत कम है। सो एनीबडी हु इज रीचिंग देयर, हु वांट्स टू एस्पायर टू बी, हैज टू फॉलो अ प्रोसेस, राइट। वी कैन नॉट टेल देम एनी शॉर्टकट्स। हम उन्हें टिप्स दे सकते हैं, ट्रिक्स बता सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट नहीं बता सकते। जो उस रास्ते पे चला है वही बता सकता है कि ऐसा ऐसा सा होता है, बट चलना तो खुद ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आपके जूते गंदे नहीं हैं तो आपने इसका मतलब बहुत दौड़ नहीं लगाई है, मैं मानता हूँ। फाइन, इफ योर शूज आर क्लीन यू हैवंट वॉक्ड इनफ, सो दैट इज ट्रू। और ये फैक्ट है कि इस एग्जाम में मैं ये मानता हूँ कि आपके इंटेलेक्ट और आपकी स्मार्टनेस दोनों काम आते हैं। दैट इज व्हाट अ ब्यूरोक्रेट इज, राइट। मैं ये भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल आप एकदम मोहित भट्टाचार्य बन जाओ, फाइन, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि आप ये भी मत सोचो कि मैं वो रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली किताब बन जाऊँ, है ना, जो 10 पन्ने में बोलती है कि पूरा भारत का इतिहास जिसमें लिखा हो, तो ये भी नहीं कर सकते। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। एंड वेरी फाइन कोट फ्रॉम आवर संस्कृत टेक्स्ट कि भाई विद्वान स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
तो ये फैक्ट है कि भाई जो भी इस प्रोसेस में है उसको विद्वता की जरूरत तो पड़ेगी, राइट? वो ही डजंट हैव टू बी लाइक आई सेड रिसर्चर, बट यस ही शुड नॉट नेग्लेक्ट द पाथ ऑफ सीकिंग. अब वो नॉलेज हो, स्ट्रैटेजी हो, मैनेजमेंट हो, ट्रिक्स हो, मेथड्स हो, जो भी हो, सीख तो करना ही पड़ेगा ना. इफ यू आर नॉट सीकर यू विल नॉट गेट इट. राइट सर. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ पॉडकास्ट, राइट? होप कल सौरभ आएगा कलेक्टर बन के तो हम बात करेंगे फिर इनसे, और सौरभ जैसे ऐसे बहुत सारे जो आएंगे हम उनसे बात करेंगे. फाइन, थैंक यू सौरभ फॉर Sir, your thank you. extraordinary journey, right? And we are really proud and happy both Thank you, sir. that you are enjoying this journey. That is the best thing. All of you, thank you so much.